are blessed with two sons, Dr. Ravindranath and Surya Prakash, and daughter Aruna. Honorable members, on behalf of this House and my own, wish him a long, healthy and happy life and extend greetings to his family members. Papers to be laid on the table. Sri Gajendra Singh Shekhawat. Honorable Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 2 in today's list of business. Thank you, sir. Dr. Jitendra Singh. Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 2, bracket 2 in today's revised business. Thank you, Chairman, sir. Shri Pratap Rao Jadhav. माननीय सभापति जी, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। श्रीमती अनुप्रिया पटेल। Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name in the revised list of business for today. Susri Shobha Karant Laje. सर, मैं आपके अनुमति से आज के संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 5 पर वर्णित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। श्री कीर्तिवर्धन सिंह। Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers related to Ministry of Environment, Forest and Climate Change mentioned against my name at serial number 6 of item number 2 in today's revised list of business. Srimati Raksha Nikhil Khadse. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay the paper on the table of the House as shown against my name at serial number 7 in the today's list of business. Thank you. Message from Lok Sabha, Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 7th August 2024 passed the Finance Number 2 Bill 2024. The Speaker has certified that the bill is a money bill. I lay a copy of the said bill on the table. Laying of CAG reports, Sri Pankaj Chaudhary. माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड 1 के अधीन क्रमशः 1 से 5 में वर्णित प्रतिवेदनों को एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। Motion for election to the Employees State Insurance Corporation. Dr. Mansukh Mandavia to move a motion for election of one member to the Employees State Insurance Corporation. Sir, with your permission, I rise to move the following motion. That is, pursuant of clause 1 of section 4, read with subsection 1 of section 5 of the Employees State Insurance Act 1948, number 34 of 1948, and Rule 2A of the Employees State Insurance Rules 1950, this House to proceed to elect in such manner as directed by the Chairman, one member from amongst the members of the House to be members of the Employees State Insurance Corporation. Motion moved. Those in favor will please say ayes. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Honorable members, supplementary list of business inter alia regarding consideration and return of the Finance Bill 2024 has been issued. A copy of the bill as passed by Lok Sabha was circulated in the morning. Those honorable members who desire to give notices of amendments to the said bill may do so till 1 p.m. today. Honorable members, the Business Advisory Committee in its meeting held on 7th August 2024, considering
the suggestions made by the Ministry of Parliamentary Affairs recommended that the reply of the Honorable Minister of Finance to the combined discussion on Jammu and Kashmir Appropriation Number 3 Bill 2024 and the Appropriation Number 2 Bill 2024 may be given along with the reply to the Finance Bill 2024. Matters raised with permission. Dr. Aziz Madhav Rao Gopsade. Need for legal recognition of electro-homeopathy medical system in the country. आदरणीय सभापति महोदय, हमारे देश में कुल मिलाकर 1 second, you can see me in my chamber. आदरणीय सभापति महोदय, हमारे देश में कुल मिलाकर 6,64,300 गांव हैं। हिंदुस्तान के 140 करोड़ की आबादी में डॉक्टर पेशेंट रेशियो 1:834 है। कुल मिलाकर 23 लाख डॉक्टर चिकित्सक ये अपनी देश की सेवा में लगे हैं। मैं जो आज बात इस पवित्र सभागृह में बोलने जा रहा हूं, वो हमारे सभी डॉक्टर्स, पैथी के सारे चिकित्सकों के लिए ये पसंद नहीं आएगी। हमारे हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है हमारे चिकित्सक गांव-गांव में जाकर अपनी चिकित्सा सेवा गरीब जनता को दे, जिससे आयुष्मान भारत का प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हो जाए। इस मुद्दे को देखते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा के माध्यम से पूरे देश में सेवा देने वाले कुल मिलाकर लगभग 5 लाख भाई बहन, इसमें बहुतांश लोग छोटे-छोटे गांव में अपनी सेवा दे रहे हैं। इस चिकित्सा प्रणाली को कानूनी मान्यता नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इस विषय में संशोधन की आवश्यकता है। हम इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बड़े वर्ग को शुद्धि क्रिया करने के लिए बेसिक मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी जैसे विषयों का प्रशिक्षण देकर हम इन्हें 6 महीने या 1 साल का प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित करें। चाहे तो हम इन्हें आप डॉक्टर, चिकित्सक या वैद्यराज न कहते हुए हम सभी को इनको आरोग्य सेवक कह सकते हैं। इनकी पूरे हिंदुस्तान में एक रजिस्टर सूची बनाएं, बोगस लोगों को चुनकर बाहर रखें। इनका देश भर में बोर्ड तथा काउंसिल का निर्माण करने के लिए इनको देश के स्वास्थ्य सेवा के मुख्य प्रवाह में लाए। इससे पुलिस प्रशासन की उनको तकलीफ न हो। इनका आत्मविश्वास बढ़ाकर प्राथमिक चिकित्सा गांव-गांव में देकर इनका मनोबल बढ़ाए। 2017 से आईडीसी में इस विषय का प्रपोजल मंगवाया था। आईडीसी चेयरमैन डॉक्टर वीएम कटोच की समिति इस पर अध्ययन कर रही है। जर्मनी में जीएचपी, जर्मन होम्योपैथी फार्माकोपिया में इलेक्ट्रोपैथी के 38 मेडिसिन है जो स्पाइरोजेरिक होम्योपैथी के नाम से है। डॉक्टर कटोच समिति का कहना है इनका कोई स्वतंत्र फार्माकोपिया नहीं है। इस पार्श्वभूमि पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का होलिस्टिक इंडिया का सपना साकार करने के लिए अगर हम इस दुर्लक्षित तथा वर्ग को कई सालों से पीड़ित स्वास्थ्य कर्मी भाई बहनों को स्वास्थ्य सेवा के मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे तो इसका स्वास्थ्य सेवा में गांव-गांव तक, जन-जन तक प्राथमिक सेवा देने का एक अच्छा प्रयत्न शुरू हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के कई हेल्थ यूनिवर्सिटी है, इनके लिए कोई पाठ्यक्रम जैसे बीएससी इलेक्ट्रो होम्योपैथी जैसे कोर्सेज चालू करके भी इस विषय में अच्छा विकल्प Thank you. Shri, 1 second. Please take your seat, leader of the opposition. Please take your seat. Yes, sir. What do you wish to say, sir? Sir, I want to say. Sir. Yesterday only we raised this issue, Sir. and it is a very important issue. Sir. Not only concerned to a particular Sir, what is the individual. point you are making? No, this forgot. You want to discuss it? Yes. Discuss. Take request. And who is behind this? And how only 100 Sir, grams. nothing else is going on record. Nothing else is going on record. I will not allow the House to be used as such a platform. Please, sorry. Avail the rules, sorry. Shri, nothing going on record. Shri Kartikeya Sharma demand to establish defense maintenance, repair and overhaul in Ambala. Yes.
Sir, this is a request for establishing defense, maintenance, repair and overall MRO hub in Ambala. आज मैं आपके सामने अंबाला और आसपास के लोगों की लंबे समय Mr. Derek O'Brien, मांग को लेकर you are shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the house. You are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I will show you the door. How dare you shout at the chair? And senior leaders are not taking note of it. This is unbecoming conduct. I will not countenance it. Honorable members, we have seen the ugliest of scene. We saw a dark phase of our democracy during emergency. We know how it starts. It starts first with a challenge to the parliament institution. And that challenge was there in June 1975. A serious challenge here. I'm sure we have distinguished member here. Can anyone countenance this kind of conduct? They think they are law unto themselves. They think they are all wise. They think they are the only one whose heart is bleeding. The entire nation is in pain because of our girl. Entire nation is feeling the pain. Right from the president to the prime minister to myself and many more, everyone is sharing that situation. But to monetize it, to politicize it, is the greatest disrespect to that girl. That girl has a long way to go. I was so happy that the state of Haryana immediately announced we will give her all commendations, all financial relief that is due to a medal winner. There is a state government that has recognized her as a medal winner. Will give all assistance given to a medal winner. And here, I would urge you all with folded hands. Many of you are very senior to me. In this house, let us have bipartisan approach on certain issues. Issues like this. On political issues, debate permits your point of view to be projected. Yesterday it was done. And let me tell you, honorable members, when the leader of the opposition raised his hand yesterday, I have to take note of it. Leader of the House and leader of the opposition are very, very significant. I sent a message to him. What is the issue you are seeking to raise? And the response which I get in writing, which will be laid on the table of the House today, and that was, I want to raise an issue of urgent public importance. Do I make anything out of it? Do I know the subject of it? Do I know the urgency of it? In the process, the leader of the opposition has an idea of the chair, that the chair is a rubber stamp or just a post office, get a communication and give the floor. When I give floor to someone here that is watched by more than 1.4 billion people, it is embedded in the history. I do not know how I will be able to respond to my conscience. Individually, all members are so talented. Sir, you walked out and you came. In the process, you hurt more than 1 billion people. In the process, you set aflame democratic traditions. By walking out, the insult to the chair, did you see yourself how Derek O'Brien, floor leader of TMC, shouted at the chairman? No. If it does it, is it the way? I am so sorry, Sri Kartikeya Sharma. Thank you, Chairman, sir.
Sir, I come from Haryana, so I would like to resonate the sense of the House that you have just said, that we are all members of this House standing with our brave girl. Yes, Sir, I am Leader of the House, on the contemporary scenario, please. जिस तरीके से अभी विपक्ष ने व्यवहार किया, जिसने आपको भी तकलीफ पहुंचाई और संवैधानिक दृष्टि से जो संसदीय मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन हुआ है, वह सच में निंदनीय है। इट इज़ कंडेमनेबल। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन प्रजातंत्र एक व्यवस्था में चलता है और जब व्यवस्थाएं अपनी मर्यादाएं लांघ जाती हैं तो प्रजातंत्र पर बहुत बड़ा आघात होता है। मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कहता हूं कि लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस और जिनकी एक संख्या के रूप में टीएमसी भी यहाँ पर विराजमान है विपक्ष के रूप में, जिस तरीके से उनका व्यवहार चेयर के प्रति रहा है वह कंडेमनेबल है। और जो लोग लंबे समय से संसदीय प्रणाली में कार्य करते रहे हैं उनके लिए ये एक प्रश्न आत्मचिंतन का है जो उन्हें करना चाहिए। जहाँ तक विनेश फोगाट का सवाल है, ये कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है और सारा देश उनके साथ खड़ा है। ये भारतीय खेल को आगे बढ़ाने का विषय है जिसके साथ सब लोग भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं और भावनाओं के साथ विनेश के साथ खड़े हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कल प्रधानमंत्री जी ने कहा चैंपियंस ऑफ चैंपियन, और साथ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारा देश खड़ा है। मुझे लगता है, और मुझे ही नहीं लगता, सारे देश को लगता है कि ये आवाज़ प्रधानमंत्री की आवाज़ 140 करोड़ देशवासियों की आवाज़ है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इसको भी हम पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद विपक्ष विषय विहीन हो चुका है, मुद्दा विहीन हो चुका है। The opposition does not have any solid issue which they want to discuss, for which the ruling party is ready for discussion on all forums and on the forum of Rajya Sabha. लेकिन जब सारा देश इस विनेश के साथ खड़ा है तो मुझे लगता है, और जो भी प्लेटफॉर्म्स थे और हैं उन सारे पर रिड्रेसल का प्रयास भारत की सरकार और खेल मंत्रालय और ओलंपिक एसोसिएशन के हमारे नुमाइंदों ने किया है। इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसलिए भावनाओं पर कंट्रोल करना, भावनाओं को सीमित रखना और अपने विवेक से काम करना, यह इस समय की आवश्यकता है। मुझे लगता है, मैं आशा करता हूं कि विपक्ष अपनी भूमिका को इस दृष्टि से देखेगा। एक बार आपको जिस तरीके से आपके चेयर को आघात पहुंचा है, यह सच में निंदनीय है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। Will you take your seat? मैं बोल रहा हूं, टेक योर सीट। बैठिए, एक बार बैठिए, मैं बोलने जा रहा हूं अभी। माननीय सदस्यगण, इस पवित्र सदन को अराजकता का केंद्र बनाना, भारतीय प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात करना, अध्यक्ष की गरिमा को धूमिल करना, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण वातावरण करना, ये अमर्यादित आचरण नहीं है। ये हर सीमा को लंघित करने वाला आचरण है। ये सदन इस समय देश की रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष को यहां सदन के नेता के रूप में देख रही है। यह सदन इस समय प्रतिपक्ष दल के
राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी उपस्थितियां देख रही है प्रतिपक्ष के नेता के रूप में। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेता भी इस सदन के सदस्य हैं। जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं और जिस तरीके से चुनौती शब्दों से, पत्र के द्वारा, अखबार के माध्यम के द्वारा, एक प्रमुख अखबार, नाम नहीं लेना चाहता, कितनी गलत टिप्पणी की है मैंने देखा है। मेरे को यह चुनौती नहीं दी जा रही है, यह चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। और यह चुनौती, प्लीज, यह चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए उतना नहीं मिला है। मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं की। डोंट लाफ एट इट मिस्टर जयराम। नो, मैंने, सुनिए, डोंट मेक एनी शो ऑफ इट। नो, डोंट मेक इट। सुनिए प्लीज। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य, आई नो योर हैबिट। 1 सेकेंड। माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से नमस्कार। No point of order. Mr. Abdul Wahab. Mr. Abdul Wahab. Mr. Abdul Wahab, please. No. Mr. Abdul Wahab. Mr. Kartikeya Sharma, please. Nothing is going on record. धन्यवाद उपसभापति महोदय। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूं। आज अंबाला और उसके आसपास के लोगों का लंबे समय से एक पेंडिंग मांग को लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। महोदय, पिछले कई वर्षों से अंबाला की जनता, वहां के युवा, वहां के व्यापारी, माननीय सदस्य बड़े वरिष्ठ है, 0 आवर है, 0 आवर के सब्जेक्ट पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो तो मैं सुन सकता हूं, बाकी कोई और नहीं। प्लीज आप बोले। महोदय, पिछले कई वर्षों से अंबाला की जनता, वहां के युवा, वहां के व्यापारी, कई विभिन्न संघों की ये डिमांड रही है कि अंबाला को एक विकसित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए। बुनियादी ढांचे की कमी, कमज़ोर पब्लिक सर्विसेज और सीमित आर्थिक अवसरों के कारण अंबाला ने विकास की कोई गति नहीं पकड़ी है। अंबाला का एक अपना महत्व है, एक ऐतिहासिक शहर है। 1857 से लेकर क्विट इंडिया मूवमेंट तक अंबाला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में बुनियादी विकास हुआ है, लेकिन रेल, रोड, एयर कनेक्टिविटी, ऐसी चीज़ों के ऊपर काफ़ी ध्यान केंद्रित रहा है। अब समय है कि इसका औद्योगिक विकास भी क्षेत्र का हो सके। इसके लिए मैं एक डिमांड रखना चाहता हूं कि जो MRO है, जिसको मैं आपके ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूं कि अंबाला में एक डिफेंस मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल MRO हब की स्थापना का मैं अनुरोध करना चाहता हूं सरकार से। अंबाला की ऐसी अनेक विशेषताएं हैं जो इस डिफेंस MRO बनाने के लिए सबसे अच्छा स्थान बनने के लिए हर एक दृष्टिकोण से पहुंचता है, क्योंकि उसकी एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, उसका जो रोड कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है। चाहे मैं NH1 की बात करूं, चाहे मैं बात करूं NH22 अंबाला कालका शिमला हाईवे है, ये सब चीज़ें स्ट्रेटेजिकली
एक ऐसी लोकेशन बनाता है कि एक एमओरो के लिए बहुत ही आवश्यक है और डिफेंस ऑपरेशंस के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि पूरे वेस्टर्न कमांड के लिए और वेस्टर्न एरिया के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट भी 40 किलोमीटर दूर है। और मैं सदन को ये बात भी बताना चाहता हूँ कि अम्बाला के अंदर बहुत ही जल्द सिविल एविएशन एयरपोर्ट भी शुरू होने वाला है। तो ये एक आखिरी कड़ी थी जो भी पूरी हो गई है। और मैं ये निवेदन इसलिए भी रखना चाहता हूँ क्योंकि जो आसपास के इलाके हैं उसमें व्यवसाय के लिए, नौकरियों के लिए बहुत ही ज़रूरी आवश्यक प्रोजेक्ट है, जिसके लगने से पूरे क्षेत्र का विकास होएगा। और जो नौकरियों को लेकर जो हमारे क्षेत्र के युवा हैं, जो वहाँ पे कमी रही है, उसको भी विकसित होने का मौका मिलेगा। उसके साथ अन्य उद्योग, लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग और बहुत सारे ऐसे उद्योग जुड़े हुए हैं जो उस एमआरओ को सपोर्ट करेंगे। हमारे पास स्थल सेना, एयरफोर्स के लिए भी वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी परिस्थिति बन सकती है, जिसका फ़ायदा पूरे के पूरे अम्बाला क्षेत्र को और पूरे के पूरे नॉर्दर्न रीजन को मिलेगा। मैं आपसे के माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि एक एमआरओ ग्रांट किया जाए ताकि अम्बाला और अम्बाला के आसपास के क्षेत्रों को इसका फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय कार्तिकेय शर्मा जी। Honorable Sri Abdul Wahab demand to establish CGS wellness centers in the districts of Thrissur, Palakkad and Malappuram and implementation of super specialty hospitals under CGS in Kerala. Sir, thank you. I would like to draw the kind attention of the government towards pressing demand of the people of Kerala for setting up of CGH's wellness centers in my district, Malappuram, Thrissur and Palakkad. These districts are most densely populated area where number of central government offices are functioning. Thrissur is the cultural capital of Kerala state. CGHS eligible beneficiaries in these districts are not able to avail the facilities for want of CGHS centers and are wholly depending upon private hospitals. Number of former members of parliament and their dependent family members are also living in these district headquarters. Though it is a fact that requisite number of beneficiaries as per set norms may not be available in this area, but the eligible beneficiaries living and working in adjoining districts can also be considered to meet the requisite norms and conditions for the purpose of establishment wellness centers. CSMA rules 1944 are applicable only to serving central government employees. These rules are not applicable to pensioners. I think this very rule needs to be reviewed to consider the serving and pensioners at par for the purpose of treatment. Also, the FMA paid is not commensurate with the market charges levied by the hospitals and consultations. There is an urgent need to increase the FMA amount also. I would urge the government to set up CGHS centers in these districts, or the government should at least devise an appropriate mechanism to allow CGHS eligible beneficiaries to obtain treatment from the super specialty hospitals in these districts by empaneling them under the charge of nearby existing CGHS centers, wherever such centers cannot be established. This would also help them to a certain extent in order to depend upon for the treatment. Thank you. Thank you, Mani Abdul Wahab ji. Mani Sri Mukul Walkish Vasnik ji, demand for formulating public procurement policy in respect of SC/ST entrepreneurs. Thank you, Deputy Chairman, sir. The title of my submission needs a little correction. It's not for a new policy, rather implementation of the policy for procurement. Right. I read the title which has been mentioned here. You can correct. Thank you for giving me this opportunity for drawing the attention of the government towards one very important issue. The Government of India announced the public procurement policy for micro and small enterprises in 2012. This was notified under MSMED Act of 2006. The policy became operational from 1st April 2012 and its implementation became mandatory from 1st April 2015. Under the policy, central government ministries, departments and public sector undertakings are mandated to procure 25% of their annual value of goods and services from micro and small enterprises. This includes 4% of total procurement of goods and services from micro and small enterprises owned by the scheduled caste and scheduled tribe entrepreneurs.
It is now 9 years since the policy has become mandatory. And what is the status of its implementation? In 2018, the share of enterprises owned by SCST in the procurement of goods and services was 0.54%. This was against the mandatory requirement of 4%. In 2019, it was 0.53%. In 2020, it was 0.55%. In 2021, it was 0.79%. In 2022, it was 0.89%. In 2023, it was 0.88%. The average comes to about 0.75%. Does this reflect any seriousness on the part of the authorities responsible for the implementation of this policy? Certainly not. How long will it take for us to reach 4% of procurement from SC/ST entrepreneurs if this is going to be the pace? The House is aware that since independence, though several measures have been taken up to ameliorate the conditions of SC/ST, we still have a long way to go. I therefore demand through you, sir, that the government at the highest level must intervene immediately and see that the policy for the economic empowerment of SC/ST is implemented in true letter and spirit. So far, the implementation of public procurement policy has been extremely dismal. Recognizing the right of the deprived sections, I urge the government to take corrective steps without... Thank you. Thank you, Vasnik ji. Mani Shri Muhammad Nadimul Haq need to strengthen the healthcare infrastructure across the country. Sir, thank you, sir. Sir, before I start my zero, I just want to say one line, sir. No, you have so to speak. One line. Not allowed, it will not go on the record. You have to speak on the subject only. Please. Sir, there's a need for developing a resilient healthcare system in the country. The Union Health Ministry reported that 143 people across India had succumbed to heat stroke this summer. Sir, based on confirmed data from states as of June 20th. However, sir, the number collected by the TOI from state governments indicate 209 confirmed heat-related deaths, in addition to 239 suspected deaths, totaling 448 confirmed and suspected fatalities this season. This alarming data underscores the urgent need for a resilient healthcare system. Sir, treatment costs of various diseases, including cancer, also pushes 6 crore Indians below the poverty line every year, sir. The financial measures must be taken, sir, including increasing the health budget and expanding health insurance coverage. Over here, sir, I must say that the GST on health insurance must be dropped. We appeal to the minister. Yes. Sir, innovative steps must be taken, therefore, by the government to increase health insurance coverage so as to ensure that households are not forced to spend from their savings, which is their hard-earned savings. One example of such a scheme implemented successfully is the Swasth Sathi scheme in Bengal, which gives insurance cover and is 100% funded by the state. So Bengal, led by Honorable CM Mamata Banerjee, has shown the way. The human government must follow that example. Sir, enforcing the health and safety regulations to protect workers from extreme heat and updating the building codes for climate resilience and continuous monitoring and evaluating the policy effectiveness are essential, sir. These comprehensive actions will ensure a resilient health system for safeguarding public health and current challenge, sir. Sir, my 267 notice has gone on Vinesh Phogat. Nothing is going on record, Mr. Nadimul Haq. Please take your seat. Dr. K. Lakshman. Dr. K. Lakshman. Thank you, sir, for giving this opportunity. Concern over delay in refund of the investors of Pulse Agriculture Corporation Limited. Please. Thank you, sir, for giving this opportunity to raise the important issue pertaining to the 5 crore people of this country who have invested in a company called Pulse Agriculture Company Limited, which was established in the year 96
Jaipur, Rajasthan is the headquarters, sir. Wherein these 4 investors, they have hard-earned money invested in the company, and the company has promised to give potential fertile farmlands or the income which they are going to be doubled. But even it comes to 58,000 crores the company has collected from these poor investors, wherein 5 crore people are invested. From Telangana itself, 30 lakh people have invested, sir. They are all poor and middle-class families, sir. When SEBI came to know this, it's found it as a fault, fraud, and cheating the people. So they have stopped the transactions since 2014, sir. All the investors, they formed a welfare association, approached the court of law, and Supreme Court has given a judgment in the year 2016 to see that all the lands acquired by this company, so-called PSL, and sell the land and be given to the investors who are invested in the company, sir. And even a committee headed by retired Justice by Mr. Lodha has been constituted to see that all these poor people get back the money. If necessary, all the lands of the company be sold and given to them. But unfortunately, though it has 8 years has been lapsed, sir, hardly 20 lakh people got the money back. It comes to only 4%, sir. Almost when it is 1,000 crores only. People have invested 58,000 crores, sir. Sir, there may be some technical issues or lapses because these people are from rural background, farmers, or some of them illiterate. While applying through online, there may be some technical defects. In the name of that, these people are now being denied their due amount share, sir. I appeal through you, sir, to the government to intervene in this matter and see that the justice is done to this all the 5 crore people. Hardly 20 lakh people have got it. I also appeal to the committee through you, sir, to see that the matter is expedited and justice is done to them, sir. Thank you very much. Thank you. Manya Susri Dola Senji demand to address the problem of undernourishment in India. Thank you, Deputy Chairman, sir, for giving me the opportunity to raise my 0-hour submission here. Sir, till date, हमारे विकसित भारत और अमृतकाल के माहौल में 76% चिल्ड्रेन आर द विक्टिम्स ऑफ फूड पॉवर्टी. यूनिसेफ की रिसेंट डाटा के अनुसार 92 हंग्री देश के अंदर भारत 84th पोजीशन में है. सो अनफॉर्चुनेट सर. Very recently, United Nations Food and Agricultural Organization data revealed that India is the largest contributor to global undernutrition with approximately 194.4 million people, that is 14.37% of our population, lacking sufficient nutrition. Over half of Indian women are anemic. So saddening, sir. The major causes of undernourishment are lack of access to and unaffordability of nutritious foods. Unequal distribution of wealth and property plays a major role in creating their lack of access. The top 1% of the population controls over 40% of India's total wealth, sir. And on the other hand, the National Family Health Survey 5 reveals that 20% of children in India suffer from wasting, that is low weight from height, and 36% suffer from stunting, that is low height for age. Moreover, India accounts for 49% of global burden of wasting, highlighting a significant challenge in combating this from the acute malnutrition. This statistic shows an urgent need for comprehensive and effective measures to address and mitigate child nutrition across the country. We cannot address undernourishment without addressing rising food prices. Food inflation rose over 9% in June. This is mainly on the back of increase in price rise of vegetables, pulses and cereals. Urgent steps must be taken to address the problem. I urge upon the Minister and the Union Government to address these alarming trends by intensifying efforts to tackle malnutrition through targeted nutritional program and improving maternal health as well in the country, and allow the opposition also to discuss about Dinesh Phogat, as we have discussed on 20... No, nothing. You are misusing. No, it's not allowed. Please. It's not allowed. Nothing is going on record. आप जानते हैं जो सब्जेक्ट अप्रूव्ड है दोला जी वही बोला जा सकता है. आप अनुभवी हैं. Do not misuse the platform, please. Honorable Shri Naresh Bansal,
Honorable Shri Naresh Bansal, demand to approve the plan for expansion of AIMS Rishikesh in Uttarakhand, please. धन्यवाद उपसभापति जी। Nothing is going on. Please प्राकृतिक take your सौंदर्य seat. से भरपूर मां गंगा के तट पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से उत्तराखंड को मिला था। एम्स ऋषिकेश की नींव 2004 में 2 फरवरी को रखते हुए तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि भविष्य में एम्स ऋषिकेश राज्यवासियों के लिए वरदान साबित होगा। आज ये सच हो रहा है। एम्स ऋषिकेश को स्वास्थ्य सेवाओं, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण में क्षेत्रीय संतुलन को दूर करने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित किया गया था। 27 मई 2013 से यहाँ ओपीडी की सुविधा शुरू हो गई। इसके 8 महीने बाद 30 दिसंबर 2013 में आईपीडी और फिर 2 जून 2014 से सर्जरी शुरू होने से उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों के मरीजों के भी एम्स ऋषिकेश पहुंचना शुरू कर दिया। विषम भौगोलिक स्थिति वाले इस पहाड़ी राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर प्रत्येक अवसर पर दृढ़ संकल्पित नजर आए। अपनी स्थापना के बाद से एम्स ऋषिकेश एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में विकसित हुआ है, जिसमें वर्तमान में विभिन्न पाठ्यक्रम में 1030 छात्र छात्राएं हैं। एम्स ऋषिकेश अब कई चिकित्सा और संबद्ध पाठ्यक्रम चलाता है। इन गतिविधियों का मार्गदर्शन 200 से अधिक संकाय सदस्यों द्वारा किया जाता है। नियमित बाह्य रोगी क्लिनिकों में बढ़ती संख्या के साथ साथ 91 विशेष क्लिनिक जोड़े गए हैं। इसी तरह 2013 में 200 बिस्तर वाले अतिरिक्त आंतरिक रोगी सुविधा से अब इसकी क्षमता 960 बिस्तर की है। जैसे जैसे एम्स में स्वास्थ्य सुविधाएं और मेडिकल तकनीक विकसित होती गई, वैसे वैसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती गई। कोरोना महामारी के दौरान जब कोरोना संक्रमित व्यक्ति के पास जाने के लिए भी लोग भयभीत होने लगे थे, उस दौरान भी एम्स के चिकित्सकों ने फर्ज निभाते हुए कोरोना संक्रमितों का जी जान से इलाज किया। देहरादून जिले के ऋषिकेश में स्थित एम्स आज न सिर्फ उत्तराखंड के गढ़वाल, कुमाऊं मंडल बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल तक के लोगों को अपनी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। वह रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जिससे एम्स ऋषिकेश पर अतिरिक्त दबाव होने के कारण लोगों को बेहतर व त्वरित इलाज मिल सके। इसके लिए आवश्यकता है एम्स ऋषिकेश के विस्तारीकरण की व यहाँ मेडिकल व नर्सिंग स्टाफ की सीट बढ़ाने की, जिससे ये दबाव कम हो सके, सभी को समय पर अच्छा इलाज मिल सके। अतः मैं सदन के माध्यम से आपके द्वारा यह निवेदन करता हूं कि इसका विस्तारीकरण। धन्यवाद माननीय नरेश बंसल जी। माननीय श्री देवाशीष सामंत राय जी, डिमांड टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सपोर्ट टू IT कंपनीज फॉर द ग्रोथ ऑफ IT सेक्टर इन ओडिशा। Thank you, sir. I'll start with the IT journey in Odisha. 20 years back, NIC was brought to Odisha by the then Honorable Shri Naveen Patnaik, my leader, and from there the journey starts. Infrastructure to bring in IT companies was laid out. A master plan was made. Due to that master plan, I am proud to say Bhubaneswar became the #1 smart city of our country. As we start this journey, Odisha emerging as the new IT hub of India. With a huge talent pool, favorable and hassle-free business environment, and political stability, Odisha is well poised to be sought-after IT destination in the country. This political stability was, of course, Naveen Babu's 24 years. This effort, where personal initiative was taken by our then Chief Minister to go to all the top IT companies in Bombay, in Bangalore, and Hyderabad. We got TCS, we got 2 campuses of Infosys, Wipro, Tech Mahindra. Now, as the Honorable Minister IT is from Odisha,
who has been a bureaucrat also in our state. He understands. He was my collector in Cuttack. I urge through you, I request through you, sir, there's this strategic support that Odisha needs to not only become in Eastern India, the hub of Eastern India in IT, but also in India. If you see our talent pool from Odisha, there are lakhs in Bangalore, Hyderabad, Pune, Bombay, Calcutta. So we have the natural talent pool in our state. Therefore, lastly, I again request you humbly to our minister to give priority in the support to IT in Odisha. Thank you, sir. Thank you, Manya Devashish Rai ji. Manya Shri Babu Ram Nishad ji demand to construct a dam on Betwa River in Hamirpur district of Uttar Pradesh. Manya Babu Ram Nishad, not present. Manya Babu Ram Nishad. Manya Shri Satnam Singh Sandhu ji demand to ensure the conservation of wetlands in Punjab for preserving the overall ecosystem for migratory birds. Manya Satnam Singh Sandhu ji, please. Thank you so much, sir. आपने मुझे बोलने का समय दिया। आदरणीय उपसभापति जी, कुदरत ने हमारे देश को, भारत को बहुत सारी सौगातें दी हैं और बहुत सारे कुदरती सौगातों के साथ हमें नवाजा है। हमारे पास सबसे अच्छे पर्वत हैं, नदियां हैं, हमारे पास जंगल हैं, हमारा क्लाइमेट, हमारा टेम्परेचर, हर चीज़ बहुत ही कंड्यूसिव है और इसीलिए इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं पूरी दुनिया से भारत में प्रजनन के लिए आते हैं, खाने के लिए आते हैं और वो लंबा समय वो इंडिया में, भारत में व्यतीत करते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने कुदरत के ख़िलाफ़ एक जंग छेड़ रखी है, मुझे लगता है कि हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपने भविष्य का ही नुकसान कर रहे हैं और हम एक तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं बात करना चाहूँगा आज इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड्स की, जो हर साल करोड़ों की तादाद में भारत में आते हैं और उनकी संख्या, पंजाब में आने वाले माइग्रेटरी बर्ड्स की संख्या कम होने लगी है और उसकी वजह है कि हमारे पास 7 वेटलैंड्स हैं पंजाब में, जिसमें से 5 को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया, वो प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स हैं। लेकिन बाकी में ये प्रोटेक्शन ना होने के कारण और पंजाब का जो पानी है वो इसकी बहुत बड़ी एक समस्या है कि पंजाब की नदियों का पानी जो है वो पोल्यूट हो चुका है और हमारे सतलुज नदी का एक बूढ़ा नाला जो है वो पोल्यूशन का एक कहर बरसा रहा है, वो मौत का सौदागर बन गया है। और लुधियाना के बूढ़ा नाला में डाइंग इंडस्ट्री का और डेयरी का बहुत बड़ा पोल्यूशन सीधे ही नदी में जा रहा है और वो पूरे पंजाब से होता हुआ हरियाणा और राजस्थान की तरफ भी बढ़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंसानों पे तो पड़ रहा है, लेकिन जो इंटरनेशनल बर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास, उनकी आने की गिनती बहुत कम हो रही है। मैं सरकार को निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर संज्ञान लिया जाए और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा, जिन्होंने आज़ादी के 75वें अमृतवाह उत्सव पर हर डिस्ट्रिक्ट में 75 अमृत सरोवर बनाने का बहुत बड़ा एक देश को तोहफा दिया, जिसकी वजह से हर डिस्ट्रिक्ट में 75 जो पॉन्ड्स हैं हमारे वो बनाए जा रहे हैं, अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। और उसकी वजह भी बहुत बड़ी है कि जिसकी वजह से हमारे जो बर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, उनको एक प्रोटेक्शन मिलेगी, उनको यहाँ पे खाना मिलेगा, उनको यहाँ पे प्रजनन के लिए समय मिलेगा। और मैं सरकार से ये भी निवेदन करूँगा कि गाँव के पॉन्ड्स को, जो छप्पड़ है हमारे गाँव के, उनको बचाने के लिए प्रयास किए जाएँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करके इलीगल वहाँ पे कब्जे। धन्यवाद माननीय सतनाम सिंह संधू जी। Honorable Shri Santosh Kumar P, concerned over MOUs signed between Indian Council of Agriculture Research and MNCs. Thank you, sir. Sir, this ICAR, Indian Council for Agriculture Research, is one of the prestigious institutions in our country with an impressive track record of more than 125 years. And sir, this ICR had contributed tremendously in bringing green revolution a reality
and in ensuring food security of our country. And ICR should play a more important role in the coming days also, because we have a huge population, around 54%, which is depending on agriculture. And agriculture is the most important provider of employment in this country. And we all know that our farmers are in distress. Every day, on an average, 30 Kisans are compelled to commit suicide in our country. That is so unfortunate. Sir, this is to express my serious concern on certain MOUs signed between ICAR and some notorious multinational companies. And why I call them these companies notorious? One is Bayer, the other one is Syngenta, and the third one is Daniga Agritech. ICR is having a very good network. More than 700 KVKs are connected to it. So why ICR, which is funded by our people, it's a public institution, should enter into an agreement with MOUs with these notorious institutions? These companies' track record are very bad, and they always stand for profit only, and they never care for people and planet. So, for example, Daniga, this Daniga Infotech Agritech is supposed to provide natural farming with the farmers. But the company is ill-famous for toxic chemicals. This is the paradox. And Bayer, another company, its deadly poisons have violated basic human rights and rights of people across the world. So I take this opportunity to demand the immediate withdrawal of these MOUs signed with the multinational companies. Thank you, sir. Thank you, Mani Santosh Kumar ji. Mani Dr. Lakshmikant Bajpayee demand to start a super fast Vande Bharat train from Meerut city to Banaras. माननीय सभापति जी, उपसभापति जी, मेरठ शहर स्टेशन से वाराणसी के लिए वाया इलाहाबाद एक ट्रेन चलाने की मांग लंबे समय से मेरे द्वारा की जा रही है। और कारण उसका ये है कि इलाहाबाद जहां हमारा धार्मिक क्षेत्र है, वहां हमारा उच्च न्यायालय भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ट्रेन से जाने में और विवादकारियों के हित में भी आवश्यक है। वाराणसी भी हमारा एक तीर्थ स्थल है। तो मैं बार बार इस बात का आग्रह कर रहा हूं, और मेरा ये सौभाग्य है कि आज तो माननीय रेल मंत्री जी भी इस वक्त सदन में उपस्थित हैं। मेरठ से वाया इलाहाबाद, लखनऊ इलाहाबाद, वाराणसी के लिए सुपर फास्ट या वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए, ये मेरा विनम्रतापूर्वक सरकार से आग्रह है। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री विवेक के तनखा जी, ऑनरेबल श्री विवेक के तनखा, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री एच.डी. देवगौड़ा जी, ऑनरेबल श्री एच.डी. देवगौड़ा जी, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री जोस के मनी जी, sorry, yes. माननीय श्री जोस के मनी demand to tackle the increasing menace of drug abuse in the country, please. Thank you, sir. So I want to address a very serious issue which we have talked about for a long time, but we are not able to contain the issue, that is a drug abuse, sir. The drug abuse is not confined to any part of the country, but it affects cities, towns, and villages alike. According to the data from National Crime Records Bureau, the cases registered under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985 have gone up almost 204% from 25,785 in 2011 to 78,331 in 2021. Even more tragically, India recorded as many as 10,560 suicides from drug and alcohol addiction, which is about 189% higher than what is reported in 2011. Shocking. The number was not just statistics, but this is the harsh reality we are facing. We need to act urgently. Prevention starts with education. We need to invest in robust programs that educate our youth about the danger of drug abuse. Thank you. Thank you, Jose Manaji. Time is over. Question hour. Thank you. Thank you. Question number 181, Honorable Shri R. Dharmar.
Question number 181. Present. माननीय मंत्री जी. First supplementary. Mr. R. Dharmar, first supplementary, first question. So will the Minister of Labour and Employment please to the state the details of the progress of the employment grant generation schemes state-wise, including in the Tamil Nadu. The details of fund allocated and utilized for the such schemes during the last 3 years within Tamil Nadu. Whether such schemes can be actually reduced in the unemployment, it is in the country. If so, the details thereof along with the amendments made under these schemes, especially with the record to the withdrawable benefit. The whether government proposed to Thank you. Please be specific. Urban employment. Please be brief and specific. Guarantee scheme and the lines of the NGNRECL. If so, the details thereof and the time for which it is likely to be the Please be brief to your question. Thanks. Okay. माननीय मंत्री जी. माननीय डेप्यूटी चेयरमैन साहब, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि तमिलनाडु में भारत सरकार ने पिछले सालों में कितना खर्च रोजगारी सृजन करने के लिए करा. मेरा उत्तर है कि कुल मिला के रोजगारी सृजन करने की 8 महत्वपूर्ण योजना जो मोदी गवर्नमेंट ने चलाई है, FBRY, PMMY, मनरेगा योजना, PM स्वनिधि योजना और RAC योजना, इस टाइप की योजना के पीछे 2021-22 में 42 करोड़ रुपीस और 22-23 में 54,000 करोड़ रुपीस और 23-24 में 70,000 करोड़ रुपीस तमिलनाडु के लिए आवंटन करा गया है. Thank you. Second supplementary. So whether the government is proposing for any program under any of the these schemes to cover fishermen and Tamil Nadu, the details thereof. And whether the government is proposing to launch any program, the like migrant employment generation program. This is specifically for the migrants of the Sri Lankan Tamils. Whether the government is proposing to set up the institute to conducting the training programs of them. Whether the government is proposing to increase the wages being provided under the schemes. Please be brief. For NGNRECS. Thank you. माननीय मंत्री जी. सर, जैसा माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि रोजगारी सृजन के लिए कौन सी योजना चल रही है और उसमें आप कुछ विस्तार करना चाहते हैं कि नहीं. माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, मैं बताना चाहूँगा कि रोजगार सृजन करना ये बहुत आवश्यक होता है और हमारी सरकार ने यानी कि मोदी गवर्नमेंट ने देश में रोजगारी का सृजन हो उसके लिए कई योजना चलाई है और उसका ये नतीजा ये निकला है कि जब हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% था वो डाउन होकर आज 3.2% तक पहुंचा है और आने वाले दिनों में और कम होगा. लेकिन ये तब संभव हुआ है, उसके लिए सरकार की ओर से प्रयास हुआ है. मैं मोदी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही योजना का केवल ब्यौरा देना चाहूँगा तो कुल मिला के 15 ऐसी योजना है जो हमारी सरकार ने रोजगार सृजन के लिए चालू करी है. हमने एक राष्ट्रीय कैरियर सेवा सर्विस नेशनल कैरियर सेंटर चालू करा जिसमें कोई भी युवा हो उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए और जो जॉब देना चाहते कंपनी हो या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो उसके पर जाके वो रजिस्टर करते हैं. ऐसे 30 लाख जॉब देने वाले का रजिस्ट्रेशन है और उसके पर जिसको जॉब चाहिए उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है और वो लाखों की संख्या में वहाँ से लोगों को रोजगारी मिली है.
मैं उसको आगे जाके बताऊंगा। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, ये योजना के द्वारा, ये योजना 2016 में चालू हुई है, यानी कि हमारी सरकार ने चालू करी। उसमें कुल 1,21,00,000 रोजगार का सृजन हुआ, लोगों को रोजगारी मिली। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये भी हमारी सरकार ने चालू करी। हमारी सरकार ने जो योजना चालू करी है उसका लाभ तमिलनाडु को भी मिल रहा है। वैसे ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा रोजगार सृजन हो रहा है। वैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए आजीविका मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, ये सब कार्यक्रमों के द्वारा रोजगार भी सृजन होता है, रोजगारी का अवसर भी मिलता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना द्वारा कई ऐसे लोग हैं जो अपने स्वयं पर कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। ये बजट में भी पहले 10 लाख रुपये का आर्थिक सहयोग मिलता था। ये भी कोई टाइप की गारंटी की आवश्यकता नहीं। एक समय था जब कोई बैंक के लोन के लिए जाते थे तो बैंक कहते थे आप इनकम टैक्स दे रहे हो, आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है। जो बैलेंस होता और इनकम टैक्स दे पाए इतनी स्थिति होती तो वो क्यों बैंक के पास जाता। लेकिन ऐसे गरीब युवक युवती जो धंधा रोजगार स्वनिर्माण स्वयं करना चाहते हैं, मुद्रा योजना के द्वारा कुल मिला के 18.29 करोड़ ऋण स्वीकृत हुआ है और ये स्वीकृति के द्वारा करोड़ों लोगों को रोजगार का अवसर मिला है। ऐसे 49 करोड़ लोग हैं, युवक है, युवती है, जिसको मुद्रा योजना के द्वारा सहयोग मिला। मैं बैलेंस नहीं, कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूँ। जैसा हमारी सरकार ने रोजगार सृजन के लिए प्रयास करा और सारे देश में रोजगारी का निर्माण हुआ, लेकिन मैं तमिलनाडु के माननीय सांसद को रिक्वेस्ट करूंगा, आपके राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को जाके कहे कि सारे देश में रोजगार सृजन हो रहा है। भारत सरकार ने 15 विविध योजना के द्वारा रोजगार सृजन का कार्यक्रम चला रहे हैं। ये योजनाएं उनके राज्य में भी लागू हो रही है, वहाँ भी लोगों को लाभ मिल रहा है। लेकिन अपनी सरकार के द्वारा थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि आज तमिलनाडु में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3 है, देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2 है। तमिलनाडु में मैं बताना चाहूँगा, जहाँ LFPR सर्वे के मुताबिक 60% LFPR हमारा था, वो कम होके 57% हुआ है। वैसे ही WPR रेशियो श्रमिक जनसंख्या अनुपात बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें भी तमिलनाडु में 56% था, वो भी कम होके 54% हुआ है। तो भारत सरकार के द्वारा रोजगार सृजन के जो प्रयास है उसमें तमिलनाडु सरकार सहयोग करेगी और विशेष एफर्ट करेगी, तो तमिलनाडु में भी रोजगारी का सृजन ज्यादा हो सकता है। मंत्री जी, माननीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला। थैंक यू डिप्टी स्पीकर सर। प्लीज नो क्रॉस टॉकिंग प्लीज। माननीय सुरजेवाला सवाल। हेलो, थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर। सर, द मिनिस्टर स्पोक अबाउट employment generation, but we are all lost. It's completely lost as to what he really said. Sir, on 20th May 2024, Honorable Prime Minister said that they have created 6 crore jobs in 7 years. Within 58 days, Prime Minister changed on 13th July 2024 and said in 3 years they've created 8 crore jobs. Then on 12th July, a day before, one senior minister of the cabinet says in 10 years, they've created 12.5 crore jobs. But sir, my question, sir, is in Lok Sabha, they answered that 22 crore people applied for government jobs, but only 7,22,000 got. We are confused. Prime Minister himself doesn't know how many jobs have been created. Ministers don't know. Will the minister answer in last 10 years how many jobs have really been created? Thank you. Thank you. डेप्यूटी चेयरमैन सर, सुरजेवाल जी भ्रमित ही रहेंगे और उसका रीज़न ये है कि इसलिए तीसरी बार वहाँ पर बैठे हैं और ये भ्रमित रहे हैं। इसलिए एक सामान्य, सुरजेवाल जी सुनिए, एक सामान्य लॉजिक है।
कोई भी देश की इकोनॉमी ग्रो करती है, कोई भी देश की इकोनॉमी ग्रो करती है तो रोजगार सर्जित होता ही है। और हमें तो प्राउड फील करना है, गौरव लेना है। कोविड के बाद डेवलप्ड कंट्री की भी इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हो चुका है। वैसी स्थिति में हम 8% इकोनॉमिक ग्रोथ से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रो कर रहे हैं। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ कब करती है? इकोनॉमिक ग्रोथ तब करती है जब सर्विस सेक्टर आगे बढ़ता है, जब एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ता है, जब ट्रेड सेक्टर आगे बढ़ता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ग्रोथ होता है, ये सब में कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ होता है, तब जाके देश की इकोनॉमी ग्रो होती है। और ये सबसे बड़ा सामान्य सेंस का विषय है कि इकोनॉमी ग्रो करेगी मतलब देश में रोजगारी का सर्जन हो रहा है। छोटे मोटे फिगर बिगर लेके मत घूमते रहिए, अप्रिशिएट करिए। भारत सरकार देश में 3 अरे सर एक समय था जिसके पास डेटा क्रिएट करने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, और डेटा ही क्रिएट नहीं होता था, कितने लोगों को रोजगार मिला नहीं मिला। आज 2017-18 से भारत सरकार ने एक रोबस्ट मैकेनिज्म तय करा है जिसमें हम हर साल में एक बार डेटा क्रिएट करते हैं। आने वाले दिनों में 6 महीने में, बाद में हर महीने में कितने लोगों को जॉब मिला, कितने लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन हुई, ये हम क्रिएट करेंगे। और ये तो मैकेनिज्म के तहत होगा। जो डाउन होगा तो डाउन होगा, अप होगा तो अप होगा। अनएम्प्लॉयमेंट डाउन हुआ है, 3.2% हुआ है, जाके देख ले और मैकेनिज्म भी देख ले। इसलिए कंफ्यूजन में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, अनाप चनाप हर चीज में पॉलिटिक्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। चलिए नए भारत के निर्माण में आपको साथ में आना है, आइए हम सब साथ में मिलकर 140 करोड़ की जनसंख्या नया भारत का निर्माण करें और विकसित भारत बनाए। माननीय समीरुल इस्लाम। Sir, I have a question for Honorable Minister. Will the Minister be pleased to share the unemployment rate in the country? Will he inform this House about the challenges the government facing to control unemployment? Thank you. Thank you. साहब, बेरोजगारी को नियंत्रण करने का एक ही रास्ता है, देश में रोजगारी का सर्जन करो। और जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट रोजगारी के सर्जन के लिए एफर्ट ले रही है, इसलिए ही पिछले 5 साल में देश में बेरोजगारी कम हुई है। थैंक यू। प्रोफेसर मनोज कुमार झा। शुक्रिया माननीय उपसभापति महोदय। माननीय मंत्री जी की बड़ी पैनी नज़र है, कौन कितना खाता पीता है सब कुछ। मेरा उनसे सिर्फ एक छोटा सवाल है, इसलिए भी कि इनका प्रेशर कुकर अद्भुत है आंकड़ा पकाने का। मैं जानना चाहता हूं कि जब आप एम्प्लॉयड की बात करते हैं, इज द गवर्नमेंट कॉन्टेम्पलेटिंग टू हैव अ डेटा अबाउट अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट? थैंक यू। मनोज झा साहब, उसमें कोई टेम्परेचर प्लस नहीं होता है। हम सरकार है, मिनिस्टर है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करना हमारी जिम्मेवारी होती, यही मोदी जी ने हमें सिखाया है। देश में बहुत क्लियर है, फिगर जो आता है वो सिस्टम से आता है, मैकेनिज्म से आता है, और हमने बहुत रोबस्ट सिस्टम बनाई है। सिस्टम से ही फिगर निकल के आते हैं। आप भी जाके हमारा LFPR डेटा देख सकते हो, आप भी VPR डेटा यानी कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी देख सकते हो। सब डैशबोर्ड पर उपलब्ध है, आप जाके देखिए। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कैसे गिरावट आई, ये सारा पब्लिकली उपलब्ध है। मनोज जी भी उसको जाके देख सकते हैं, और हम उसके लिए हमारा कमिटमेंट को व्यक्त करते हैं। थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 182, माननीय श्री S. सेल्वागन बेथी। ऑनरेबल S. सेल्वागन बेथी। सर, क्वेश्चन नंबर 182। माननीय मंत्री जी। सभापति जी, उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Thank you, sir. My first supplementary is the recent tragedy in Wayanad is an example of neglecting the recommendation of the Godgill Committee.
The report recommended the complete ban on the use of genetically modified crops in the eco-sensitive zone 1 and 2 areas, and also stop to construct the railway projects and major road projects. The ecologically sensitive zones are filled with loose and red soil. If there had been a tree cover, the calamity could have been arrested or lesser. My question is, will the government formulate a device mission scheme to establish tree cover in such zones? Please be brief. माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति जी, माननीय सदस्य का संबंध जो प्रश्न था वो फॉरेस्ट कवर को लेकर के था। जहाँ तक फॉरेस्ट कवर में डेवलपमेंट एक्टिविटी का विषय है, हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट क्लियरेंस और वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस देने की एक प्रक्रिया है और उस निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत ही किसी फॉरेस्ट कवर का अगर में या वाइल्ड लाइफ एरिया में अगर कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी है तो उसके अंतर्गत ही ये परमिशन दी जाती है। दूसरा, देश में लगभग 647 से ज़्यादा इको सेंसिटिव जोन है, जिसके इको सेंसिटिव जोन निर्धारण करने की प्रक्रिया और राज्य सरकार के दिए गए सुझाव के आधार पर ये इको सेंसिटिव जोन की प्रक्रिया की जाती है। तीसरा विषय मैं सदस्य को क्लियर करना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में वायनाड में कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस केवल एक दी गई, वो भी सैद्धांतिक स्तर पर 17 हेक्टेयर ज़मीन में कैनाल की दी गई, जिस पर भी कोई कार्य नहीं हुआ और केंद्र सरकार के द्वारा कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस की स्वीकृति पिछले 10 वर्षों में वायनाड के उस एरिया में नहीं दी गई जहाँ पर ये घटना घटी। Second supplementary. Sir, in the Union Territory of Puducherry, there is a land constraint to develop forest cover. Many government lands and temple lands available are not maintained. Therefore, will the government identify the vacant lands belonging to the government and the temples to establish tree cover with a native species and also provide special fund for such development and maintenance? Honorable Minister. जहाँ तक भूमि के संबंध में विषय है, भूमि राज्यों के स्वामित्व का विषय होती है और अगर किसी भी क्षेत्र का फॉरेस्ट डाइवर्जन होता है तो उसके संबंध में कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन और एनपीवी जो है उसके निर्धारण के आधार पर ही डाइवर्जन की अनुमति दी जाती है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, पांडिचेरी में जहाँ तक फॉरेस्ट कवर की बात है, पांडिचेरी में 2017 में 53.67 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर था, जो 2019 में घटकर 52.41 स्क्वायर किलोमीटर हो गया था, परंतु वहाँ पर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन और अन्य गतिविधियों के कारण फॉरेस्ट कवर बढ़कर के अब 53.30 ये 2021 में हुआ है और ये जो चिन्हित करने की प्रक्रिया राज्य सरकारों के द्वारा की जाती है। राज्य सरकारों के द्वारा अगर कोई नगर वन भी चिन्हित किया जाता है तो कैंपा के द्वारा फंडिंग की जाती है। Thank you. Third supplementary, Honorable Jairam Ramesh ji. Question to the Honorable Minister comes from Annexure 1 of his reply. Andaman and Nicobar Islands, the total area is 8,260 square kilometers. 83% of it is forest area. Now, we've been reading in the newspapers over the last couple of months that there is a huge mega project in Great Nicobar which is going to lead to a loss of thousands of hectares of good, rich forest, which is ecologically very sensitive. I'd like to ask the Honorable Minister, what is the status of this and what steps are going to be taken to prevent the loss of forest cover in an ecologically fragile and sensitive area of the country? माननीय उपसभापति महोदय, अंडमान निकोबार के जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो एक बड़ा क्षेत्र सघन वन से आच्छादित है, वहाँ पर जो स्वीकृति दी गई है वो पर्यावरणीय जो स्वीकृति है उसके अनुकूल दी की गई है और स्वीकृति देने से पहले सभी विशेषज्ञों से वार्ता करके कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन की ज़मीन का निर्धारण करके और विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्र में बीएसआई, जेडएसआई जैसे जो हमारे एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट हैं जो वन्य जीवों के प्रजनन और बाकी विषयों का पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं, उनकी सबकी सलाह लेकर के स्वीकृति सैद्धांतिक तौर पे दी गई है, जिसका विवरण भी वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है। थैंक यू। माननीय सुजीत कुमार, fourth supplementary. Forest fire is one of the major factors for the depletion of forest cover in our country.
as for the Forest Survey of India data, last year in FY 23-24, there were 12,114 major forest fires in the country. So I would like to know from the Honourable Minister, what is the government doing to prevent such forest fires which contributes to the depletion of forest cover? Thank you. माननीय उपसभापति महोदय, जहाँ तक फॉरेस्ट फायर का विषय है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सैटेलाइट सेंसर्स के द्वारा उसको पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है और सैटेलाइट बेस इस सर्वे के द्वारा हम फॉरेस्ट फायर का निर्धारण करते हैं। फॉरेस्ट फायर लगने के काफ़ी कारण हैं। स्थानीय स्तर पर जो मवेशी चराने हमारे लोग जाते हैं, उनके कारण, तापमान के कारण, कभी कभी दुर्घटना के कारण, कभी कभी कुछ जगहों पर इस प्रकार का वृक्षारोपण किया गया है जो आग के लिए बड़े संवेदनशील तंत्र के रूप में काम करते हैं। इसके लिए हमने लगातार फॉरेस्ट एरिया में जहां पर ये फॉरेस्ट फायर लगती हैं पिछले 3 सालों में, उन क्षेत्रों को चिन्हित किया है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बनाने का काम किया है। इवन फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान में भी हम एक फायर लाइन का निर्धारण करने का निर्देश देते हैं। अगर फॉरेस्ट में फायर भी लगे तो जो फायर लाइन क्षेत्र है वो 2 क्षेत्रों को अलग करने का कार्य करता है। हम इसकी सघन रूप से निगरानी करते हैं और आवश्यक जितने भी साधन हैं उनको उपलब्ध कराने का काम करते हैं। थैंक यू। फिफ्थ सप्लीमेंट्री, ऑनरेबल एम थम्बी दुरई। Thank you, Deputy Chairman, sir. Honorable Minister has given the list of the annexer. The forest areas is increasing and decreasing at a, especially small states, northern states, all the states, the decrease is there. And also, if you take Pondicherry also, as he said, less is going on. Sir, in Tamil Nadu also, the increase is very less. The increase is shown plus point, but it's less. I want to know from the Honorable Minister, what are the actions are going to take, especially Tamil Nadu, like that deforestation is taking place in many places. There are illegal activities going on. That is what we have seen that. The timbers are cutting in Tamil Nadu area. Please. It is a rain, we are not able to get. Some floods are coming. Whether government will take any action, advise the state Tamil Nadu government to take the action to increase the forest area. Thank you. माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति महोदय, जहाँ तक फॉरेस्ट क्षेत्र के बढ़ने के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि जो देश में 1540 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है वो मुख्य रूप से उसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड का कंट्रीब्यूशन है। जहाँ तक उत्तर क्षेत्र के जो राज्य हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, 90%, 80% तक का फॉरेस्ट कवर है, वहाँ निश्चित रूप से विकास परियोजनाओं के कारण थोड़ी कमी दिखाई देती है। उसका कोई कारण अवैध रूप से फॉरेस्ट को काटना नहीं है। जंगलों की अवैध कटाई के लिए हमने सख्त कानून बनाए हैं और अब हम उसकी मॉनिटरिंग जीपीएस के माध्यम से भी करते हैं। अगर कोई विशेष जगह या उदाहरण माननीय सदस्य को तमिलनाडु के संदर्भ में लगता है तो मैं चाहूँगा कि वो मेरे संज्ञान के अंतर्गत लेकर के आए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 183, ऑनरेबल श्री हरीश बीरन। माननीय मंत्री जी। उत्तर सभा पटल पे रखा। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। So the convenience of movement and deployment of forces is one of the reasons why the elections are held in several phases, particularly even in state assembly elections. Now, sir, my question to the Honorable Minister through you is, how is the deployment possible when elections are held simultaneously, and what are the costs involved in the said process? Thank you. उपसभापति जी, वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर के एक HLC गठित की गई। उसके करीब हाई लेवल कमेटी में 191 दिन में 65 मीटिंगें हुई। उसमें कई रीजन आए कि अपने को वन नेशन वन इलेक्शन की ओर बढ़ना चाहिए, साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने चाहिए। उसमें एक रीज़न ये आया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बार बार लगने से
डेवलपमेंट का काम रुकता है। और एक विषय ये आया कि खर्चा भी अधिक होता है और सुरक्षाकर्मी भी ज़्यादा लगाने पड़ते हैं बार बार। जो अभी सप्लीमेंट्री पूछा माननीय सदस्य ने, ये फोर्सेस कितनी लगेगी, कितने चरणों में चुनाव होगा, ये विषय भी हमारी कमेटी के सामने आया। ये भी एक रीज़न था जिसके कारण इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि वन नेशन वन इलेक्शन की ओर इस दिशा में देश को बढ़ना चाहिए। ये रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंप दी गई है और इसके जो क्रियान्वयन से संबंधित जो कानूनी पहलू है, जिनमें कई संविधान संशोधन और होने हैं, उन पर विचार किया जा रहा है। थैंक यू। Thank you. Second supplementary. Thank you, sir. Sir, the Honorable Minister in his reply has said that there are a number of constitutional amendments which might be required if one nation, one election is to be implemented. My question to the Honorable Minister is whether the government is planning to delete Article 356 from the Constitution of India for the said purpose. Thank you. डिप्टी चेयरमैन सर, ये आर्टिकल 356 का इस क्वेश्चन से संबंध नहीं है, लेकिन जो सप्लीमेंट्री पूछा माननीय सदस्य ने, उसका जो पहला पार्ट था उसमें हमारी हाई लेवल जो कमेटी रिपोर्ट ने 83 जो ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा की बात करता है, आर्टिकल 172 जो ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है, आर्टिकल 82A और आर्टिकल 324A और आर्टिकल 325, आर्टिकल 327, सेक्शन 5 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली एक्ट 1991, ये ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली NCTD की बात करता है। सेक्शन 5 ऑफ द गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963, सेक्शन 17 ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जैसे कुल 18 कॉन्स्टिट्यूशनल और रिलेवेंट कानूनों के संशोधन के रिकमेंड किए हैं। 356 इसमें इस कमेटी ने इसमें विचार नहीं किया है। थैंक यू। माननीय श्री राजीव शुक्ला, थर्ड सप्लीमेंट्री। सभापति जी, जो मंत्री जी का जवाब है उसमें संक्षिप्त जवाब है, जिसमें कि रिपोर्ट सौंप दी, इसके बाद क्या होगा कुछ पता नहीं। लेकिन जो रिकमेंडेशंस हैं उनके हिसाब से कि अगर कोई विधानसभा भंग हो जाती है तो फिर उसको जो है चुनाव उतनी अवधि के लिए कराया जाएगा। अब सपोज 4 साल चलने के बाद विधानसभा भंग हो गई तो क्या 1 साल के लिए चुनाव कराएंगे क्या? मेरा मानना है कि इसमें आप इस तरह का संशोधन करिए कि कोई हाउस डिजॉल्व ही ना हो 5 साल के पहले, तब तो संभव है वन नेशन वन इलेक्शन, वरना नहीं संभव। तो मंत्री से मैं जानना चाहता हूँ क्या इस दिशा में विचार करेंगे? और दूसरा, संविधान संशोधन करें तो कैसे संविधान एक ही सवाल। हाँ, वो एक ही में कौन से संविधान संशोधन? एक ही में 2 सवाल नहीं, एक ही सवाल। हाँ ठीक है, प्लीज। डिप्टी चेयरमैन सर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो HLC की रिपोर्ट में ही इसका समाधान है। जो हमने HLC की रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति जी को सौंपी है, उस रिपोर्ट में रिकमेंडेशन देते हुए बताया गया है कि पहले चरण में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे। उसके पश्चात दूसरे चरण में म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायतों के चुनाव 100 दिन के अंदर होंगे और इसको सिंक्रोनाइज किया जाएगा। ये जो बात पूछ रहे हैं वो इस रिपोर्ट में ही है, कुछ के आगे पीछे अवधि होगी, लेकिन वो संविधान संशोधन के बाद होगी। थैंक यू। माननीय संजय कुमार झा। माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हम लोग भी इस कमेटी में जा करके अपने पार्टी के तरफ से इसके पक्ष में ही बात रखे थे कि इसका रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में कब आएगा और अगला जो लोकसभा इलेक्शन होने वाला है उस समय तक उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई उनका प्लान है कि नहीं? उपसभापति महोदय, राष्ट्रपति जी को जब रिपोर्ट सौंप दी गई कमेटी के द्वारा, वो पब्लिक डोमेन में ही है। एक विषय में जो आपने उठाया मैं बताना चाहता हूं कि HLC की रिपोर्ट के अनुसार टोटल 62 पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना एविडेंस इनके सामने दिया, वो उपस्थित हुए। माननीय सदस्य कह रहे हैं उनकी पार्टी भी उपस्थित हुई। जो 47 दलों ने अपना फीडबैक दिया उसमें 32 जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे वो वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में थे और 15 राजनीतिक दल ही वन नेशन वन इलेक्शन से असहमत रहे। पब्लिक डोमेन में ही है रिपोर्ट। और जैसे मैंने पहले कहा
कि क्रियान्वयन से संबंधित जो कानूनी पहलू है उन पे विचार किया जा रहा है। थैंक यू। माननीय वीरेंद्र कुमार वैश्य। Thank you, Chairman, sir. One nation, one election, election reform is the call of the hours. We remember former Law Minister Dinesh Goswami Commission, Dinesh Goswami Committee given a report regarding the election reforms long back, sir. I want to know from the Honorable Minister, is government is seriously thinking the implementation of recommendation given by the Dinesh Goswami Committee report? Thank you. ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, माननीय सदस्य ने सही कहा कि जितने भी रिपोर्टें हमारे पास आई थी, जैसे इलेक्शन कमीशन की फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट 1983, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 170th रिपोर्ट और नेशनल कमीशन रिव्यू ऑन वर्किंग उनका इसकी रिपोर्ट, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 2018 की रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जिनका जिक्र कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट, सारी रिपोर्टें हमने इस रिपोर्ट में अंकित भी की है, उनका उल्लेख भी किया है, इसलिए ही वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में रिपोर्ट दी गई है। थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 184, माननीय श्री नारायण दास गुप्ता जी। माननीय मंत्री जी, सभा पटल पे रखा गया है। थैंक यू। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, मुझे अवसर दिया आपने। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करूँगा, बहुत ही विस्तृत जानकारी आपने दी है मेरे प्रश्न के उसमें। और एक जो आपने बताया कि जी टोटल इन 10 years 1733.97 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट लैंड जो है वो अप्रूव हुई है फॉर डाइवर्जन ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस इंक्लूड्स दी हिल एरिया आल्सो। अभी देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में बहुत ही लैंडस्लाइड हुए हैं और इसका एक कारण है कि जो आपने लैंड जो हिल एरिया में ये जब डेवलपमेंट के लिए दी है वहाँ पेड़ काट दिए जाते हैं, लेकिन जब पेड़ रहते हैं जड़ें उनकी ज़मीन को पकड़ के रखती हैं और जब हटा दिए जाते हैं ज़मीन वो छोड़ देती है, उसका एक कारण है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि हिल एरिया में कितना, आपने अलग फिगर नहीं दी है, हिल एरिया में कितना आपने लैंड अप्रूव करी है डेवलपमेंट के लिए, और जो लोगों को जान माल का नुकसान होता है, घर के घर बह जाते हैं इसमें लैंड स्लाइड में, उसको रोकने के लिए क्या आपने स्कीमें दी हैं, और जो लोगों को लॉस होता है जान का भी, माल का भी, घर के घर बह जाते हैं, उसका कंपनसेशन देने के लिए, हालांकि आप कहेंगे ये राज्य का विषय है, लेकिन क्या कोई सरकार, केंद्र सरकार एडवाइजरी इशू करती है कि जिनके इस तरह के लॉस होते हैं उनको कंपनसेशन किस प्रकार से दिया जाए? धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा है। जो फॉरेस्ट क्षेत्र में हम लोग फॉरेस्ट एरिया में जो परमिशन देते हैं और फॉरेस्ट एरिया की जो लैंड को डाइवर्ट करने की जब परमिशन देते हैं तो हम दो प्रावधान लगाते हैं। एक कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन की, उसके एवज में रिकवरी की ज़मीन, और दूसरा उसका एनपीवी, जो उसका एक मूल्यांकन करने का तरीका है, उस मूल्यांकन के आधार पर राशि जमा भी की जाती है। और इसलिए जैसा कि माननीय सदस्य महोदय ने इसके उत्तर में ध्यान दिलाया है कि पिछले 10 वर्षों में 1,73,396 हेक्टर, मतलब 1,733 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट एरिया है वो इस तरह के विकास की गतिविधि के अंतर्गत गया है। पर जो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन में ज़मीन लेने का जो क्रम है, उसके कारण मैं माननीय सदस्य महोदय को ये ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 21,761 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो हमारा इंक्रीज़ भी हुआ है। तो इसमें हमने पूरी तरीके से ज़मीन की क्षतिपूर्ति की भरपाई करी है। जहाँ तक विकास योजनाओं में केवल हम ज़मीन ही देने के साथ एनपीवी ही नहीं रखते, हमारी जो अन्य शर्तें रहती हैं, विशेष रूप से जो माननीय सदस्य महोदय ने कहा है कि जब पहाड़ी क्षेत्र में कोई ज़मीन होती है तो उसका पेड़ कटने से जो है वो नुकसान होता है। उसके लिए हम सामान्यतः इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब भी हम
यूजर एजेंसी को कोई काम करने के लिए देते हैं तो सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन जो वर्क्स हैं, हम हमेशा इस बात पे ध्यान रहते हैं कि वो उसका पूरी तरीके से यूजर एजेंसी के द्वारा ध्यान रखा जाए, क्योंकि अगर मिट्टी की कटाई या उसका मॉइस्चर को अगर हमने अपने विकास कार्यों के साथ नहीं रखा तो उसके लिए हम बाकायदा दिशा निर्देश जारी करते हैं। दूसरा, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान के लिए भी बहुत आवश्यक है। और तीसरा, चूँकि पहाड़ी क्षेत्रों में ये अपने जंगली जानवरों के जाने के रास्ते हैं, तो मिटिगेशन मेजर्स में हम वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान और विशेष रूप से उसमें पैसेजेस हम देखते हैं ताकि सड़क वगैरह बनने के कारण हमारे जो जंगली जानवर, जो हमारा वन्य जीव है, उसमें किसी प्रकार की बाधा ना आए। जो दूसरा एक सहायक प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है कि किस क्षेत्र में कितनी जमीन जो है वो गई है, वो मैंने अपने उत्तर में ही कहा है, द स्टेट एंड यूटी वाइज डिटेल्स आर गिवन इन द एनेक्जर। तो इस प्रश्न के साथ जो एनेक्जर लगा हुआ है उसमें सभी प्रदेशों को दिया गया और उसमें जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं वो भी सम्मिलित है, वो विस्तार से इस आपके लिखित उत्तर में दिए गए। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, protection and sustainable management of the forest are primarily the responsibility of the state government and union territory. This is the answer you have been given. Whether the government has undertaken any survey or developed any mechanism to identify landslide-prone areas in advance so that the loss of life can be prevented well in advance, as on the lines of tsunami early warning system. Thank you. माननीय उपसभापति महोदय, दो विषय हैं। पहली बात, जब हमारे यहाँ एक 1987 से फॉरेस्ट सर्वे की एक पूरी संगठित व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हर 2 वर्ष में हम फॉरेस्ट एरिया का सर्वे करके उसकी रिपोर्ट को प्रकाशित करके सबके सामने रखते हैं। जहाँ तक उसके वर्गीकरण का विषय है, हमारे जो फॉरेस्ट सर्वे की जो रिपोर्ट है उसमें डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, ये 3 कैटेगरी में हम सामान्यतः फॉरेस्ट का निर्धारण करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ट्री जो आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया है उसका भी हम लोग पूरा समीक्षा करके पूरा विषय रखते हैं, क्योंकि देश के ग्रीन कवर में को प्राप्त करने का एक 33% देश का ग्रीन कवर करने का लक्ष्य जो देश के कार्बन सिंक के योगदान के लिए आवश्यक है उसका करते हैं। जहाँ तक ये जो घटनाक्रमों का विषय है, ये पूरा विषय डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा देखा जाता है, स्थानीय राज्यों के द्वारा दिया जाता है। हमारा सर्वेक्षण जो है वो फॉरेस्ट एरिया के सर्वेक्षण का विषय है, उसकी जो पूरी क्वालिटी है, उसकी विशेषता है, उसकी डेंसिटी है या वो ओपन एरिया है, उसकी पूरी जानकारी का रिकॉर्ड हम रखते हैं और प्रकाशित भी करते हैं। Supplementary number 3, I am taking a time for a minute. Sorry, honorable members, I have to leave the house to take self-disciplined decisions. When a scene is created in the house, that it becomes epicenter of disruption for the entire nation, then it is our bounden duty to sometimes take tough decisions. I left my seat to introspect, having been witness to a spectacle which I found was unprecedented, indigestible, and I would be walking away from my oath if I do not take tough decisions. I called a meeting of the floor leaders at 1:30 p.m. today, and I would reflect to them all I have in mind with video evidence if they require. This House has presented in recent times, in spite of my best efforts, persuasion, patience, accessibility, pleading, prayer, requests, all have been taken not in the right spirit. Sublimity has been misunderstood as fragility. Persuasion has been misunderstood as weakness, and therefore I have thought about it. Supplementary number 3, Shri Imran Pratapgadi.
धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ कॉरिडोर बनाने के लिए तकरीबन 33,000 बड़े पेड़ और छोटे मिलाकर के 1 लाख पेड़ों को काटने की योजना है। तो क्या भारत सरकार के संज्ञान में ये बात है, और अगर है तो भारत सरकार इस पे सहमति दर्ज करा रही है? दूसरा इसी के साथ मेरा प्रश्न है माननीय मंत्री जी से कि उत्तराखंड का जोशी मठ लगातार दरक रहा है, लोग भयभीत हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या भारत सरकार उसके लिए क्या कदम उठा रही है? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, सप्लीमेंट्री नंबर 1 का /1 का उत्तर, ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। सप्लीमेंट्री 1 का /2 का उत्तर, ये विषय एनडीआरएफ देख रहा है। सप्लीमेंट्री नंबर 4, संत बलबीर सिंह जी वो नॉट हियर। सप्लीमेंट्री नंबर 4, डॉक्टर फौजिया खान। Thank you, sir. Sir, in line with our coming Montreal commitments to achieve 30 by 30, a worldwide initiative for governments to designate 30% of Earth's land and ocean area as protected area by 2030. Rampant deforestation is antithetical to the goal. The ministry has also given a nod to more than 80 projects requiring 2 to 3 million trees to be felled. The alternative has been afforestation efforts with compensatory afforestation fund management and planning authority. My question, sir, is there any data to suggest that the afforestation of new trees is a replacement for millions of acres of untouched foreign land? Untouched forest cover, sir. Forest cover. Your last answer was brevity is the soul of wit. माननीय सभापति महोदय, But that is allowed once a day only. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके 2 भाग हैं। पहला ये है कि जो पेरिस की कॉप के बाद हमने जो अपने 8 लक्ष्य दिए थे, एनडीसीज दिए थे, 3 उसमें क्वांटिटेटिव थे, उसमें एक लक्ष्य ये था कि हम भारत में जो ग्रीन कवर है अपने कार्बन श्रिंक के लिए उसको 33% तक बढ़ाएंगे, जो अभी 1.97 बिलियन है। माननीय सदस्य का कहना एकदम सही है, और इसलिए उसको बढ़ाने के लिए ग्रीन इंडिया मिशन का तो योजना चलाई ही जा रही है, उसके साथ ही साथ कैंपा के अंतर्गत भी योजना चलाई जा रही है। शहरों के अंतर्गत नगर वन योजना के तहत इसके विस्तार के लिए हम कार्य कर रहे हैं। ट्री कवर को बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक पेड़ माँ के नाम जैसा महत्वपूर्ण अभियान भी चलाया जा रहा है। हमारे समुद्री क्षेत्रों के और जो भारत की 7,600 किलोमीटर लंबी जो समुद्री क्षेत्र है उसमें भी ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए मिष्टी जैसा कार्यक्रम, जो उसको मैंग्रोव सीशोर इंटेंजिबल इनकम करके जो बड़ा कार्यक्रम चलाया जाता है, उसके अंतर्गत भी ट्री कवर को बढ़ाने का काम किया जाता है। इसके साथ ही साथ इस ग्रीन मिशन को बढ़ाने के लिए स्कूल नर्सरी योजना जैसे और हमारे जॉइंट जेएफएमसी के द्वारा भी कार्यक्रम और अभियान किए जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कवर को, पेड़ को बढ़ाने का कार्य किया जाता है, ताकि जिससे जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया उसको प्राप्त किया जा सके। दूसरा जो 30 by 30 का प्रिंसिपल है, पिछले साल जब बायोडायवर्सिटी की कॉप मॉन्ट्रियल के अंतर्गत हुई थी तब ये कहा गया था कि दुनिया के जैव विविधता के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को देखते हुए पूरी दुनिया सम्मिलित रूप से ये प्रयास करे कि 30 by 30 के एरिया को बायोडायवर्सिटी के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित किया जाए। भारत का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और मुझे बताते हुए भी खुशी है कि हमारे यहाँ पर लगभग 73,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जिसमें हमारे पास 55 टाइगर रिजर्व्स हैं, हमारे पास 33 एलिफेंट रिजर्व है, हमारे पास रिजर्व फॉरेस्ट है, सेंचुरी है, नेशनल पार्क है। भारत ने अपनी जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्य किया है और सम्मिलित रूप से जो दुनिया के प्रयास हैं उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन हमेशा पॉजिटिव रहा है। सप्लीमेंट्री नंबर 5, श्रीमती रंजीत रंजन। मैं आपके माध्यम से माइक
आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि 182 और 184 में भी जो आपने दिखाया है कि लगभग किस वन तराई और पहाड़ी में कहाँ पे वन बढ़ रहे हैं और कहाँ पे कम हो रहे हैं, और उस डेटा में तकरीबन पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर ले, हिमाचल ले, उत्तराखंड ले, सिक्किम ले, नॉर्थ ईस्ट ले, सब में वन क्षेत्र घट रहा है और सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट भी दोबारा से उन्हीं वन क्षेत्रों में लिए गए हैं। तो क्या ये सही है कि 1000 मीटर से ऊपर के सारे खासकर पहाड़ी इलाकों में लगातार वन क्षेत्र घट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सारे जो प्रोजेक्ट हैं आपके आंसर में लगातार उन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों में है? फिर मैं आऊंगी कि जो भागीरथी 4 धाम वाली योजना है, आप खुद कह रहे हैं कि वो सेंसिटिव जोन है, लेकिन उसको भी जहां पे 6,500 देवदार के पेड़ भी हैं, और दूसरा जो सिल्कवारा हुआ उसमें भी इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं कराया गया था। तो क्या ये सही है कि एक तरफ हम वन बचाने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसी भी बहाने से प्रोजेक्ट करने के लिए आज की तारीख में 1000 मीटर के ऊपर के पहाड़ी इलाकों में लगातार हम अपने ही वन क्षेत्र को खत्म कर रहे हैं? थैंक यू सो मच सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, एक ही विषय का 2 तरीके से प्रतिपादन किया जा सकता है। ये सरकार अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कार्य करती है। क्या अरुणाचल में अंतिम छोर तक सड़क पहुंचाना, क्या उनके पास प्राथमिक स्वास्थ्य के केंद्र पहुंचाना, क्या उनके पास जल विद्युत की परियोजना पहुंचाना, क्या माननीय सदस्य Let him conclude. Honorable member, let him conclude. Let him conclude first. Honorable member. माननीय सभापति महोदय, मैं पुनः कहना चाहूंगा, क्योंकि माननीय सदस्य ने 182 और 184 के संदर्भ में मेरे उत्तर के संदर्भ में कहा है। देश में जिन 5 राज्यों में फॉरेस्ट कवर घटा है उसमें उत्तराखंड नहीं है, पहला विषय। इसलिए उत्तराखंड की परियोजना के बारे में जो आपने विषय कहा वो आपके तथ्य से रखे गए फैक्ट के आधार पर ही सही सिद्ध नहीं होता है। जो हमारे 5 राज्य हैं वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, एक माननीय सदस्य, यदि अगर मंत्री जी कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो आपकी दृष्टि से सदन के पटल पर गलत कह रही हैं, तो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसी का उपयोग कीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि एक जवाब देते हैं और आप इधर से कहेंगे। फिलहाल भी हमारी हालात बहुत खतरनाक है। प्लीज फॉलो द प्रोटोकॉल। इफ यू डिसएग्री विद द मिनिस्टर, टेक रिकॉर्स टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेज and we will take strictest action against the minister if the statement is not true. But if it is true, then also things emanate. Please bear with me. Yes, Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, मैं जो मेरा उत्तर दे रहा हूँ, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है, जो मेरे पूर्व के उत्तर में भी मैंने आपके सामने रखी थी, उसके पैरा 2.10 में जो चेंज इन फॉरेस्ट कवर है, उसके अंतर्गत जो समीक्षा आई है, उस पैराग्राफ के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ये 5 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय है, और जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया बड़ा है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड है। हमारे जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं वहाँ पर ये बहुत सीमित मात्रा में क्षेत्र घटा है। क्या उत्तर पूर्व के राज्यों को सड़क पहुँचाना, क्या बिजली पहुँचाना, क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाना, क्या वहाँ की महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाना, वहाँ के गरीब लोगों को सुविधा पहुँचाना, यही तो है विकास की समन्वित कल्पना में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व के विषय हैं, उनके बारे में भी निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए मैं माननीय आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसका इस तरीके से प्रतिपादन ना करें। ये देखें कि समन्वित रूप से पूरे देश में फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए हम क्या कार्य कर रहे हैं। मैंने पूर्व में भी कहा है कि समन्वित रूप से हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ा है और सभी क्षेत्रों में ट्री प्लांटेशन को बढ़ाने के लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। आपके माध्यम से मैं पुनः कहना चाहता हूं कि सदस्यों को भी अपने क्षेत्र में ट्री कवर बढ़ाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान के साथ भी जुड़ना चाहिए। माननीय मंत्री जी, ट्री प्लांटेशन इज वन एस्पेक्ट,
and forestation is another. मैं सहमत हूं। So on that aspect also, no, the minister knows it more than I do. I am only inviting his attention so that he can inform the House now or in future that not only we are engaged in afforestation, but also in tree plantation. जी And tree plantation is not a substitute of afforestation. जी मैं सहमत Neither compensation of it. हूं। जी The honorable member would be जी happy हम to know. संज्ञान में मिलेंगे। Question number 185, Sri Ajay Makan. Honorable Minister. Supplementary number 1, Sri Ajay Makan. Sir, this year, Kodava hockey tournament entered Guinness Book of World Record without any support from the union government, whereas the state government fully supported Kodava hockey tournament. Starting in 1997, with just 60 teams, this year 360 teams with 4,834 players participated, making it the biggest tournament in the world. Kodagu district, where Kodavas come from, is considered as a cradle of Indian hockey, sir. Kodagu district has produced 50 Kodavas representing Indian hockey team. 7 of them are Olympians. Govinda, MP Ganesh, Somaya, and many others are in this list. So my question is, as a former sports minister, I know that this is very easily possible. Looking at these facts, is the government thinking of giving grants either annually or one-time infrastructure development for this important place which has given so many Olympians, so many national players, known as a cradle of Indian hockey, given the importance of hockey in our country? Honorable Minister. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य को बताना चाहती हूँ कि उन्होंने जो सवाल यहाँ पे कोडावा के बारे में रखा है, और ये बात सच है कि इस बार कोडावा जो खेल हुआ है, हॉकी का टूर्नामेंट हुआ है, तो इस बार गिनीज बुक में उनका रिकॉर्ड हुआ है। और जो फंड की बात वो कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार कोई भी डायरेक्ट फंड किसी स्टेट को मतलब किसी भी टूर्नामेंट के लिए नहीं दे सकती, और राज्य की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए। अगर वैसा कोई प्रस्ताव आता है तो केंद्र सरकार फंड्स उन्हें अलॉट कर सकती है। Supplementary number 2. Sir, I am asking supplementary number 2, but I myself, while asking the first question, I said I have been the sports minister myself. Kindly have a re-look into this, because there are so many avenues, so many ways by way of which you can directly fund a tournament. There are many tournaments, football tournaments, many tournaments which are directly funded. So my supplementary number 2 is... You can make that suggestion separately to the Honorable Minister. Yes, sir. She would be happy to activate that also. Sir, I know, sir. Second I have supplementary. been Speaker of the Assembly also, so I know my rights and privileges. Then you share Sir, my pain. Sir. Ajay Makanji, as the Speaker of the Assembly, Sir. Kindly spare some time and see me in my chamber. Sir. Second supplementary. Sir, should I come at 1:30 also, sir, along with them? Sir, my second supplementary. Sir, I had set up as a sports minister a high-altitude training center in Kunnur. There is another high-altitude training center in Himachal Pradesh. I think that this district, Kodagu district, should be considered as a high-altitude training center. By way of asking a question, I am suggesting the Honorable Sports Minister, would they look into setting up a high-altitude sports training center in Kodagu? I think they should do it. This is a suggestion in form of a question. Honorable Minister. ने सुझाव दिया है, सुझाव की हम नोंद लेते हैं। Supplementary number 3, Srimati Priyanka Chaturvedi. Sir, thank you so much. Sir, since we had the honor of the minister being here, कल जब डिस्क्वालिफिकेशन इसके कोडावू के बारे में नहीं है, पर जब कल डिस्क्वालिफिकेशन की खबर आई थी विदेश फोगाट के ऊपर, Priyanka ji, one second, take your seat. Sir, I have indicated this house is governed by rules.
That's what, sir. That is why I started with you this. Please have to confine to the 1.4 question. billion people are heartbroken, sir. I'm all we are asking, all Don't I'm force my asking hands. is, what Take is your the seat back. government of India Take your doing? seat. Take your seat. What steps are Take they your seat back. taking Take your to seat. challenge Take the your seat. disqualification, sir? Take your That seat. is all, sir. Please That take was your all, seat. sir, because Please, your 1.4 take- billion people are Nothing looking is towards the government of Please India take your to seat. fight for the Bharat. Please take your seat. Dinesh Fogart, sir. That was Take the your only seat, question, Priyanka sir. Chaturvedi. Honorable members, Minister is expected to be fully informed of the question that is before the House. If we use that opportunity for something else, we are sending two signals. One, we are not focusing on the question, and secondly, we are not following rules. Ask question limited to the issue involved. Please, for heaven's sake, 4 don't billion people are heartbroken about this. What is our government doing, sir? That is all. Is the government going to challenge this disqualification? And what are the steps being taken to ensure that Bharat ki beti Vinesh Fogart gets justice? Dr. Fawzia Khan, I hold the supplementary not relevant. Fawzia Khan, supplementary number 4. Yes. Thank you very much, sir. Sir, what specific measures is the government taking to support and promote grassroots development in field hockey? How does the ministry plan to address challenges such as infrastructure availability, funding, and access to facilities at the grassroots level? Yes. Additionally, sir, what steps are being taken to ensure that regional initiatives like the Kodawa tournament receive consistent support and contribute to the broader growth of hockey? Honorable Minister. चेयरमैन सर, ये कोडावा फैमिली के द्वारा कोडागू डिस्ट्रिक्ट में हॉकी टूर्नामेंट के संदर्भ में प्रश्न है। प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं कोडावा फैमिली को भी अभिनंदन करता हूँ। वो उत्साह से अपने यहाँ कंपटीशन कराई और 1997 से वो कंपटीशन कराते हैं और उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस टूर्नामेंट को नामांकन करवाए। बहुत बड़ी बात है और देश में हॉकी के अलावा सभी स्पोर्ट्स आगे बढ़े, उसके लिए देश में टैलेंट आइडेंटिफाई करें। टैलेंट को आइडेंटिफाई करके नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर उसको खेलने की अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए मोदी गवर्नमेंट के द्वारा 3 इनिशिएटिव लिया गया है। एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है खेलो इंडिया। खेलो इंडिया के तहत देश में हर डिस्ट्रिक्ट में एक खेलो इंडिया का सेंटर बनाया गया है और एक खेलो इंडिया के सेंटर के द्वारा जो स्कूल और कॉलेज में बच्चे 40 इयर्स एबव है उसकी कंपटीशन आयोजित करनी और स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर उसमें कंपटीशन आयोजित होती है। उसमें से एक सब सेक्शन है कीर्ति प्रोजेक्ट। कीर्ति प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो खेलो इंडिया के तहत देश में बाल्यकाल में युवावस्था में स्कूल और कॉलेज में जो बच्चे में टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करना। अभी सारे देश में एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। उसके मुताबिक 1 लाख ऐसे टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन को आइडेंटिफाई करके उसको ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी, उसको अच्छा कोचिंग की व्यवस्था करनी और उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करना। उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए हम मोदी गवर्नमेंट ने टॉप स्कीम चलाई है। टॉप स्कीम मीन्स टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये स्कीम के तहत जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है उसको उसमें प्रवेश मिलता है। जिसको उसमें प्रवेश मिलता है ये सारे प्लेयर की सारी आर्थिक व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा होती है। वो खेलने के लिए जाते हैं, उसको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेंट करना है, कंपटीशन में जाना है, भारत सरकार उसका खर्च बेयर करेगी। उसको अच्छा कोच चाहिए, कोच का सारा खर्च भारत सरकार बेयर करेगी। उसको कोई जगह पे ट्रेनिंग के लिए जाना है, विदेश में ट्रेनिंग के लिए जाना है, उसका खर्च भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। 1050 ऐसे खिलाड़ियों के पीछे भारत सरकार के द्वारा खर्च किया जा रहा है ताकि उसकी टैलेंट को अपॉर्चुनिटी मिले। तीसरा, जब कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करता है और खेलो इंडिया में निखर के आया, ऐसे प्लेयर के लिए भारत सरकार की स्कीम के द्वारा उसको हॉस्टल में रखा जाता है, उसके पर निगरानी रखी जाती है। हॉस्टल फी, खेलने के लिए सारी व्यवस्था सरकार की ओर से की जाती है।
ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा देश में स्पोर्ट्स को महत्व मिले, हमारे देश में रही टैलेंट उसको अपॉर्चुनिटी मिले, देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन करे, इस तरीके से हम स्पोर्ट्स को मदद कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। The House stands adjourned to meet at 2 p.m. today.